Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and you all are good. I am your computer teacher and we have already completed our 3 chapters, and today we are going to start with our 4th lesson, which is enhancing the presentation. तो basically इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी presentation को बहुत ज़्यादा effective और creative बना सकते हैं by enhancing it. So without wasting any time, let's start our chapter. So the name of our chapter is enhancing the presentation, and this we are going to cover few topics like various views for a presentation, animation effects, applying an animation to an object, removing an animation, transition effects, applying transition to a slide, advancing the slides, printing the presentation, and slide master. And slide master. So first we have one warm-up activity which says us to put the pictures in a correct order to tell a story. तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स गिवन है उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करके एक स्टोरी क्रिएट करनी है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन पिक्चर्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट देयर इज अ बर्थडे सेलिब्रेशन. तो अगर हम ये वाली जो थर्ड इमेज है इसको हम फर्स्ट पे रखें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम पार्टी. सेकंड पे हम रख सकते हैं ये वाली इमेज कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गाना वगैरह गा रहे हैं. थर्ड में दे आर डांसिंग, एंड फोर्थ में लास्टली दे कट द केक ऑफ द बर्थडे बॉय. Now moving forward, as we already know, PowerPoint is an application software that is used to make presentations. In this chapter, we will learn some interesting features of PowerPoint. They help us to present data in a more uniform and organized way to attract the audience. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ ऐसी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा बना देते हैं, इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको ऐसे अरेंज कर देते हैं कि वो क्या करती है, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज वेरियस व्यूज फॉर अ presentation. PowerPoint gives us different views in which we create and organize our presentations. As we create a presentation, we can switch among the different views while we work. तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम स्विच कर सकते हैं अमंग डिफरेंट व्यूज while we work. Like here, firstly we have normal view. Normal view क्या होता है? Normal view is the editing mode where we frequently create our slides. तो normal view एक ऐसा editing mode है जहाँ पे हम frequently क्या create करते हैं, अपनी slides को create करते हैं. It displays slide thumbnail on the left, a large window showing the current slide and a section below the current slide where we can type our speaker notes that for that slide. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल व्यू क्या है, ये कैसा एडिटिंग मोड है जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली अपनी स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं. ये हमें स्लाइड के थंबनेल को डिस्प्ले करता है ऑन अ लेफ्ट. एक लार्ज विंडो होती है जो क्या शो करती है, हमारी करंट स्लाइड को शो करती है, और एक सेक्शन होता है बिलो द करंट स्लाइड जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं हमारे स्पीकर नोट्स जो हमें गाइड करते हैं उस स्लाइड के लिए. नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू. Outline view is used to create an outline or storyboard for the presentation. तो outline view क्या करता है, वो हमें help करता है to create an outline या फिर कोई storyboard for our presentation. It displays the text on our slides, not pictures or other graphical items. We can quickly edit our slide text and view the content of the multiple slide at once. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी स्लाइड का जो टेक्स्ट है उसको क्विकली एडिट भी कर सकते हैं, एज वेल एज हम मल्टीपल स्लाइड्स के कंटेंट को भी व्यू कर सकते हैं एट वंस. नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू शोज अस अ मिनिएचर ऑफ ईच स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन. तो ये हमें हमारी हर प्रेजेंटेशन का एक मिनिएचर शो करता है. वी कैन ड्रैग स्लाइड्स अराउंड ऑन द स्क्रीन टू reposition them in this view. We can also select and copy multiple slides to use them in other presentations. हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम select करके copy भी कर सकते हैं multiple slides को, ताकि हम उन्हें अपनी presentations में आगे भी use कर सके. तो basically slide sorter view जो होता है वो हमें हर presentation का एक miniature show करता है. Next is notes page view. The notes pane is located beneath the slide window. We can print our notes or
include the notes in our presentation that we send to the audience or just use them as cues for ourselves while we are presenting। तो बेसिकली नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो नोट्स पेन है वो कहाँ लोकेटेड है, बीनीथ द स्लाइड विंडो। यहाँ पे वी कैन प्रिंट आर नोट्स, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं नोट्स को इन आर प्रेजेंटेशन दैट वी सेंड टू द ऑडियंस, जो हम अपने ऑडियंस को सेंड करते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या है, most people reviewing a PowerPoint presentation without a presenter will want to use reading view। यानी कि बहुत सारे ऐसे people हैं जो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं PowerPoint presentation को बिना किसी प्रेजेंटर के, तो वो क्या करेंगे, वो रीडिंग व्यू को यूज करेंगे। It displays the presentation in full screen like slideshow view with a few simple controls to make it easy to flip through the slides। तो बेसिकली रीडिंग व्यू हमें स्लाइड शो के जैसा ही काम करता है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यू सिंपल कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं ताकि हम स्लाइड्स का जो फ्लिपिंग है उसको और ज्यादा इजी कर पाए। नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या होता है, वी यूज स्लाइड शो व्यू टू डिलीवर आवर प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। It occupies the full computer screen exactly the way our presentation will look on a big screen when the audience sees it। तो स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसका टू डिलीवर आवर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं टू दी ऑडियंस। ये क्या ऑक्यूपाई करता है, ये पूरे के पूरी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑक्यूपाई करता है एग्जैक्टली जैसे कि हम कोई बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं या फिर हमारी ऑडियंस देखेगी। When we are using the slideshow view, we can keep clicking the mouse or just press the enter key to go to the next slide। जब भी हम स्लाइड शो व्यू को यूज कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम या तो अपने माउस को क्लिक करते रहते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी एंटर की को प्रेस कर सकते हैं टू गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो वी कैन स्टॉप द स्लाइड शो बाय प्रेसिंग दी ESC की, और हम ESC की को यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमेशन इफेक्ट्स। द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, लोगो एटसेट्रा इन एनी डायरेक्शन ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता है कि जब हम अपनी स्लाइड के जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे टेक्स्ट है हमारे पास, ग्राफिक्स हैं, चार्ट्स हैं, लोगोज हैं, इन सबको हमें अपने स्लाइड के ऊपर मूव कराना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं इन एनी डायरेक्शन। Animation effects can be applied to text, shapes and objects on any slide in PowerPoint 2021. When you explore the number of animation effects, you will notice that they are grouped into 4 types। जब हम ये देखेंगे ये जो नंबर है हमारे एनिमेशन इफेक्ट्स के, वो कैसे कैसे हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 4 ग्रुप्स में, 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। Let's see what they are and how to use them। First is entrance। Entrance क्या है? This group of effects serve to introduce text or objects into a slide during a presentation। तो entrance होती है कि जब हमें अपनी स्लाइड में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी हमें एंट्री करानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एंट्रेंस को डिफाइन करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। Exit। This group helps to mark the end of the text or object time on the slide। तो बेसिकली ये जो एग्जिट होता है ये हमारे ऑब्जेक्ट का एग्जिट टाइम यानी कि एंड टाइम को ही डिसाइड करता है कि वो एंड कैसे होगा। एम्फेसाइज। एम्फेसाइज क्या है? दिस ग्रुप प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन टू ड्रॉ अटेंशन टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स। इट कैन बी यूज टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो एम्फेसाइज का हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी इंपॉर्टेंट डिटेल को हाईलाइट करना होता है। नेक्स्ट इज मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स क्या है? दिस ग्रुप अलाउज यू टू मूव टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये क्या है? ये ग्रुप में हम अपने टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं अलोंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ। These can be used to transition or sort on a slide. With the exception of motion paths, most of the animation types contain subgroups of effects. They include basic, subtle, moderate and exciting effects। तो ये जो सब ग्रुप्स ऑफ इफेक्ट्स हैं ये क्या है? ये 4 टाइप्स के हमारे पास, बेसिक, सब्टल, मॉडरेट एंड एक्साइटिंग। अप्लाइंग एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम एनिमेशन को कैसे अप्लाई करेंगे? टू अप्लाई एनिमेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1,
select the object that you want to animate. Step 2, click on the animations tab in the animation group. Click the more drop down arrow to view the animation effects. Step 3, scroll through the list and click on the desired animation effect. The options given at the bottom of the above list can help us to find more animation effect. तो हमने क्या करा, हम एनिमेशन टैब पे गए इन एनिमेशंस ग्रुप, वहां से हमने मोर ड्रॉप डाउन एरो पे हमने क्लिक करा, वहां पे हमने क्या देखा, बहुत सारे हमने ऑप्शंस देखे, इफेक्ट्स देखे, जहां से हम अपने डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट को चूज करेंगे स्क्रॉल करके. And then after applying an animation effect to an object, you will notice that a numbered tag appears adjacent to the object on the slide pane. The slide will also have a star symbol next to it. तो जो हमारी स्लाइड है उसके भी नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, एक स्टार सिंबल आ जाएगा जैसे ही हम एनिमेशन यूज करेंगे. और ऑल्सो जो ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने एनिमेशन अप्लाई करी है उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, एक नंबरिंग उस पे हमें जस्टिफाई होगी. In step 4, you can further set options for some animation effects. For example, if you have chosen the wheel entrance effect, then you can choose the number of spokes of the wheel. मतलब बेसिकली हम यहाँ पे अपने इफेक्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे हमने व्हील एंट्रेंस इफेक्ट को चूज करा तो हम यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हैं कि what will be the number of spokes of the wheel. For this, click the effects option. इसके लिए हम effects option पे क्लिक करेंगे in the animation group and then choose the desired effect. और हम वहां पे choose कर लेंगे अपने desired effect को. Then in step 5, you can also specify when animation should be played by clicking on drop down button of the start box in the timing group and selecting any one of the displayed options. On click, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द माउस इज क्लिक्ड. और ये करने के बाद में जब हम अपने माउस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऑन क्लिक जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है, हमारी एनिमेशन को स्टार्ट कर देता है. विद प्रीवियस क्या होता है, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट एट द सेम टाइम द प्रीवियस इफेक्ट. विद प्रीवियस ये क्या करता है कि जो हम अगर अपने प्रीवियस किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाई कर चुके हैं उसी के साथ में वो ये वाला इफेक्ट को भी चलाएगा. आफ्टर प्रीवियस होता है दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द प्रीवियस इफेक्ट एंड्स. मतलब जब हमारा प्रीवियस इफेक्ट एंड होगा तो हमारा ये वाला इफेक्ट स्टार्ट होगा. इन स्टेप 6, इन द ड्यूरेशन फील्ड स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ एन एनिमेशन. हम ड्यूरेशन फील्ड में क्या करते हैं, अपनी एनिमेशन की एक ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करते हैं. इन द डिले फील्ड स्पेसिफाई द टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर विच द एनिमेशन शुड स्टार्ट प्लेइंग. यानी कि जो डिले फील्ड होती है उसमें हम इन सेकेंड्स में वो टाइम स्पेसिफाई करते हैं जिसके बाद में हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी प्लेइंग. स्टेप 7, टू प्रीव्यू द एनिमेशन क्लिक द प्रीव्यू बटन इन द प्रीव्यू ग्रुप. ऑल द इफेक्ट्स विल प्ले थ्रू ऑटोमेटिकली. यानी कि प्रीव्यू बटन में हम जब प्रीव्यू ग्रुप में जाके प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सारे इफेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएंगे. ऑल्सो वी हैव वन शॉर्टकट की फॉर एनिमेशन टैब विच इज Alt+A to go to animation tabs. Next is removing an animation. So basically to remove an animation from an object we have to follow given steps. Step 1, select animation pane from the advanced animation group. Advanced animation group में से हम क्या करेंगे, animation pane को select करेंगे. Then in step 2, select the animation effect from the pane on the right side. Click the down arrow to open a drop down list. हम क्या करेंगे, उस एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे, टू ओपन अ लिस्ट. देन इन स्टेप 3 सिलेक्ट रिमूव. और उसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, उसमें से हमें रिमूव ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो वो रिमूव हो जाएगी. नाउ ट्रांजिशन इफेक्ट्स. ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या होते हैं, अ ट्रांजिशन इज हाउ पावरपॉइंट गेट्स फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग ऑन स्क्रीन स्लाइड शो. ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली पावर पॉइंट के अंदर जब हमारी एक स्लाइड होती है वो जब दूसरी स्लाइड पे जाती है तो उसमें हम जो एक स्लाइड शो प्रोवाइड कराते हैं उसको हम ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं. Slide transitions can be very useful for enhancing our presentations. They grab the audience attention and make a presentation visually appealing.
You can control slide transitions by using the transition tab on the ribbon. हम ribbon पे से transition tab को use करके transitions को apply कर सकते हैं. The transition tab consists of three groups of controls as described in the following list. जो transition tab है वो three groups of controls में divided है. First is preview. This group includes a single control, a preview that displays a preview of the transition effect you selected for the current slide. Second is transition to this slide. This group lets you select the transition effect that will be used when the presentation moves on to this slide. Timing. These groups let you select options that affect how the transition effect is applied to the slide, such as how quickly the transition occurs and whether it's triggered by a mouse click or automatically after the time delay. तो बेसिकली जो ट्रांजिशन टैब है वो इन तीनों से कंसिस्ट है. पहला क्या है? प्रीव्यू. जो क्या करता है, ये ग्रुप इंक्लूड करता है एक सिंगल कंट्रोल को, प्रीव्यू को, जो क्या डिस्प्ले करता है, हमें अपनी ट्रांजिशन का, जो भी ट्रांजिशन हमने सेलेक्ट करी अपनी करंट स्लाइड के लिए, उसका एक प्रीव्यू हमें देता है. ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का मतलब होता है ये हमें हेल्प करता है कि हम एक ट्रांजिशन इफेक्ट को सेलेक्ट कर सकें जिसे हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज करेंगे. फिर टाइमिंग होता है, ये ग्रुप हमें अलाउ करता है कि हम अपनी ट्रांजिशन के लिए एक टाइम सिलेक्ट कर सके कि वो माउस क्लिक पे ट्रांजिशन हो स्टार्ट होगी या फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली होगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिले. अप्लाइंग ट्रांजिशन टू अ स्लाइड. अपनी स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करते हैं? To apply a slide transition, follow the given steps. Step 1. Move the slide to which you want to apply the transition. हमें उस स्लाइड पे जाना है जिसमें हमें ट्रांजिशन को ऐड करना है. Step 2. Click on the Transitions tab. Click the More button in the transition to this slide group to display all transition effect. हमें ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करना है, फिर हमें मोर बटन पे क्लिक करना है in the transition to this slide group to display all the transition effects. In step 3, select the transition effect that you want to apply to the current slide. In step 4, click the effects option drop down list to select a variation of the transition effect. The available variations depend on the transition you have chosen. जो variations हमें मिलेंगी वो उस transition पे based होंगी जिसे हमने choose करा है. For example, if you choose the wipe transition, the following variations are available. मतलब अगर हम wipe transition को choose करेंगे तो ये कुछ following हमारे पास क्या है, variations हैं जो हमारे लिए available होंगी. Then in step 5, specify the transition timing by entering the number of seconds or minutes in the duration box in the timing group. Then in step 6, click on the drop down arrow next to the sound option in the timing group and select the sound effect to accompany the transitions. In step 7, click on the preview button present at the extreme left on the ribbon and observe the effect. In step 8, click on the apply to all button to apply the selected effect to all slides, otherwise those slides will only be applied to the current slide. In step 9, ओपन द स्लाइड शो टैब. लास्ट में हमें क्या करना है, स्लाइड शो टैब को ओपन करना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगनिंग बटन. द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग अलॉन्ग विद द अप्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट. नेक्स्ट इज एडवांसिंग द स्लाइड. अपने स्लाइड में एडवांसमेंट कैसे लाएंगे? वी कैन एडवांस from one slide to another by clicking with the mouse or automatically after waiting for a certain interval. To do this, follow the given steps. Step 1, select a slide with the transition effect applied. हमें एक ऐसी स्लाइड को चूज करना है जिसके अंदर ऑलरेडी ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाइड हो. In step 2, to advance the slide manually, enable the on mouse click option in the टाइमिंग ग्रुप ऑन द ट्रांजिशन टैब. हम ट्रांजिशन टैब के अंदर से टाइमिंग ग्रुप में क्या क्लिक करेंगे? ऑन माउस को क्लिक करेंगे. और हम क्या कर सकते हैं? टू एडवांस द स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर एन इंटरवल, एनेबल दी आफ्टर चेक बॉक्स एंड सेट द टाइम. हम आफ्टर चेक बॉक्स को एनेबल करेंगे और टाइम को सेट करेंगे. द डिजायर्ड एडवांस इफेक्ट विल बी अप्लाइड. और जो हमारे डिजायर्ड एडवांस इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर क्या होता है?
In PowerPoint, Slide Master is used to create the default arrangement and look of the slide in a presentation. यानी कि जो स्लाइड मास्टर होता है ये बेसिकली क्या क्रिएट करता है, एक डिफॉल्ट अरेंजमेंट को या फिर हमारी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है उनके लुक को ये मेंटेन करता है. When you add new slides to a presentation and use a slide layout, the slide is prepared automatically according to the slide master. यानी कि जब भी हम कोई नई स्लाइड को ऐड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या फिर कोई नया स्लाइड लेआउट चूज करते हैं तो जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है अकॉर्डिंग टू द स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर, हम इनका यूज क्यों करते हैं, फॉर चेंजिंग एंड कस्टमाइजिंग द बैकड्रॉप ऑफ द स्लाइड्स एट वंस. यानी कि हम अपनी सारी स्लाइड्स के बैकड्रॉप को, उसके बैकग्राउंड को कस्टमाइज या चेंज करने के लिए स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं. रीअरेंजिंग द प्लेस होल्डर ऑन ऑल स्लाइड्स एट वंस. एडिटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर ऑल स्लाइड्स एट द सेम टाइम सच एज font color और so forth. क्रिएटिंग अ स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर को हम कैसे क्रिएट करते हैं? टू क्रिएट अ स्लाइड मास्टर फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, to open slide master view, click on the slide master button in the master views group on the view tab. हमें क्या करना है, हमें अपने स्लाइड मास्टर व्यू को ओपन करने के लिए क्लिक करना है ऑन द स्लाइड मास्टर बटन इन द मास्टर व्यू ग्रुप ऑन द व्यू टैब. देन इन स्टेप 2, the slide master tab appears as the active tab on the ribbon and the स्लाइड मास्टर टास्क पेन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट. हमें लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, एक स्लाइड मास्टर टास्क पेन मिल जाएगा. इन स्टेप 3, द नॉर्मल व्यू चेंजेस टू द स्लाइड मास्टर व्यू वेयर इन अ ब्लैंक स्लाइड मास्टर विद एसोसिएटेड लेआउट्स विल अपीयर. तो क्या होगा, जो नॉर्मल व्यू है वो चेंज हो जाएगा टू दी स्लाइड मास्टर व्यू. नॉर्मल व्यू स्लाइड मास्टर व्यू में चेंज हो गया तो जो ब्लैंक स्लाइड मास्टर है विद एसोसिएटेड लेआउट वो अपीयर होगा. द स्लाइड मास्टर कंट्रोल ऑल द स्लाइड. जो स्लाइड मास्टर है वो सारी की सारी स्लाइड्स को कंट्रोल करता है एट वंस. इफ यू वांट टू मेक अ चेंज टू ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन यू कैन डू सो बाय चेंजिंग दिस स्लाइड. और हम इसी स्लाइड के अंदर चेंजेस क्रिएट करके अपनी बाकी की सारी स्लाइड्स के अंदर चेंजेस को क्रिएट कर सकते हैं. देन इन स्टेप 4, let us insert a picture in the upper left corner of the slide master. हम क्या करेंगे, अपने upper left corner में एक पिक्चर को इंसर्ट करेंगे. Move, delete और resize other slide as needed. हम दूसरे स्लाइड ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, मूव, डिलीट और रीसाइज एज नीडेड. यू विल ऑब्जर्व दैट द चेंज विल अपीयर ऑन ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. और हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सारी की सारी स्लाइड्स हैं उनके अंदर भी ये चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं. स्टेप 5, each slide below the slide master is master slide for a supporting layout. यानी कि जो भी स्लाइड हमारे स्लाइड मास्टर के बिलो होती है वो क्या है, मास्टर स्लाइड है फॉर a supporting layout. Then next is printing the presentation. Presentation को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो basically to print, we can print the slides on paper to review them separately from our computer. यानी कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं. To print the presentation, follow the given steps. Step 1, click on the file tab. The backstage view appears. हम जब फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें एक बैकस्टेज व्यू मिलेगा. Then in step 2, click on the print option. फिर हमें क्या करना है, print option पे क्लिक करना है from the left pane in the backstage view. तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे print option पे from the left pane in the backstage view. Then in step 3, the print pane appears. फिर हमें क्या मिलेगा, एक print pane मिलेगा. It has different print options to print the presentation. हमारी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए उसके पास different print options हैं. Select the printing option based on what we want to print. These printing options are, और ये printing options हमारे पास कौन कौन से होते हैं. First is print all slides. The option will print all the slides in the presentation. Print selection. This option will print only the selected styles from the presentation. Print current slide. This option prints only the current slide. And custom range. This option lets you select a print range of your own. Step 4. Now choose a layout to print. For example, full page slide prints only one slide of the presentation on the entire page. बेसिकली हमें यहाँ पे अपनी प्रिंटिंग की लेआउट को भी चूज करना है कि हम पूरे के पूरे पेज पे अपने प्रिंट चाहते हैं और वी वांट ओनली वन स्लाइड ऑन ईच पेज. इन स्टेप 5, क्लिक ऑन द प्रिंट बटन. और फिर हम लास्टली क्या करेंगे, प्रिंट बटन पे यहाँ से
क्लिक कर देंगे तो वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रिंट हो जाएगी। Now quickly let's wrap up it. PowerPoint gives us different views in which we can create and organize our presentation. PowerPoint हमें बहुत सारे views provide कराता है जिसकी help से हम क्या कर सकते हैं, create और organize कर सकते हैं अपनी presentation को. An animation is a visual effect added to an object on a slide or to the slides as a whole. Then a slide transition control how our presentation moves from one slide to another. Slide transition control करते हैं कि कैसे हम अपने presentation के अंदर एक slide से दूसरी slide पे move करते हैं. We can advance from one slide to another by clicking with the mouse or automatically after waiting for a certain interval. We can print the slides on paper to review them separately from our computer. यानी कि हम अपनी presentation को print भी करा सकते हैं ताकि हम उन्हें review कर सके, preview कर सके separately from our computer. So now let's do our exercise. First question is tick the correct option. Which view displays only the text on our slides? कौन सा ऐसा view है जो सिर्फ क्या करता है, display करता है हमारे text को on our slides? So here our first question is which view displays on only the text in on our slide. So हमारे slide पे text कौन सा view display करता है? Outline view. Which key do we use to stop the slideshow? ESC key. Which of the following is not a category under the animation effect? इनमें से कौन सी category जो है वो animation effect के अंदर नहीं आती? Entrance, emphasize और enhance. It is enhance. The effect that occurs when you move from one slide to the next during a slideshow is called slide transition. Which of these is not an option in the advanced slide under the timing group? On mouse click होता है, after भी होता है, so the answer is none of these. Next question is fill in the blanks. We use dash view to deliver our presentation to our audience. Slideshow. The dash view shows us a miniature of each slide in our presentation. Slide sorter view. The animation option is available on the Insert tab. Dash are special effects that control how our presentation moves from one slide to another. Transition. Dash effects provide the option to draw attention to text or objects. Emphasize. Next question is true or false. Normal view is the editing mode where we frequently create our slides. True. Animation timing can be set in hours. No. False. Because animation timing हम set कर सकते हैं in the form of seconds. We cannot add transitions to more than 2 slides. False. हम animations को, transitions को, सबको सारी slides पे भी use कर सकते हैं. Animation duration can be specified in hours. No. False. We have already done it before. We cannot take a printout of slide. False. Because we can print the slides of our presentation. So students, this was your complete chapter about different features, different views and options which we can use to enhance our presentation and to make it more attractive, effective and very audience grabbing. So do revise it and also learn the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.